कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। समस्त को जय श्री कृष्ण। 12 अध्याय श्लोक संख्या 3। ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री परम ब्रह्म परमात्मा श्री जगन्नाथ महाप्रभु का श्री चरण रे अनंत कोटि प्रणाम। परम पूज्य समस्त मोर संत वृंद एवं आम समस्तंकर अति प्रिय आम पंडा सारे एवं मिश्र सारे समस्त मोर सुधीजन भक्तवृंद एवं मोर भक्तिमती माँ मैंने समस्त को मोर हरिओम। ओम नमो नारायणाय। हरिओम। आम श्रीमद् भगवद गीतार आउटे नुआ सीढ़ी को चढ़िले 12वां अध्याय। से 12वां अध्याय ना थिला श्रीमद् भगवद गीतार जो 12वां अध्याय से होचे हमर भक्ति योग। आ भक्ति योग भक्तिर जो मूल सूत्र आम विचार करथिले भक्तिर अर्थ कौन जे भक्तिर अर्थ है मुख्यतः सेवा। जो जगार आमर सेवा भाव थिबो भज सेवायाम धातु काली आम विशेष विचार रखी जिते आम जो संस्था प्रति या जहाँ प्रति आम सेवा करिबा सिटी आमर स्वतः ही भक्ति उत्पन्न हुए। भक्तिर तो मूल सूत्र होचे सेवा। आम किछि करूचंती कि नहीं जदि किछि करूचंती ताहले धीरे धीरे आमर भक्ति रे आम प्रवेश कर। सेकेंड कथा विचार करथिले अर्जुनंकर प्रश्न थिला दुईटी जिनिस थिला। गोटे हला सोपाधिक ब्रह्म आ गोटे हला निरुपाधिक ब्रह्म। ये दुईटी मध्यरु श्रेष्ठ किए बस ये होचे मुख्य चिंतन थिला जे सोपाधिक कौन निरुपाधिक कौन। सोपाधिक अर्थ होची गोटे उपाधि युक्त। यदि आमे उपाधि रे युक्त है आमे साधना करूछंती तार फल कौन मिलिबो तार स्थिति कौन हबो आ कौनसी उपाधि नहीं निरुपाधिक जहाँ को अव्यक्त अक्षर कहूच यदि आमे तांकर साधना करती तार फल कौन मिले ये अर्जुनंकर मुख्यतः प्रश्न थिला। भगवान सहज सरल भाव रे से प्रश्नर उत्तर दौरान जोटा को साधक मानक पाई जे सहज कौन हो आमे भगवान आम उपर अनुग्रह करी कृपा करी से कथाटी कहते जे साधक मानक पाई जो आरंभ रे जो प्रारंभिक साधक अछंती से माने केमिति साधना करि परिबे कहीं ना श्रीमद् भगवद गीता रे तो अनंत ज्ञान अच्छी ना तादर ज्ञान भंडार अच्छी
କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ଭାବରେ କୌଣସି କ'ଣ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବହୁତ ସାଧନ କୁହାଯାଇଛି, ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସବୁ ସାଧନ କୁହାଯାଇଛି। ଗୋଟେ 17 ଅଧ୍ୟାୟରେ ତପ ବାବଦରେ କୁହାଯିବ ଯେ ତପସ୍ୟା କର, ତପ କର। ଆମେ ତପସ୍ୟା ମାନେ ତପ ମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇବା, ସେଠି ଏକାନ୍ତରେ ରହିବା, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ବସିବା, କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ନାହିଁ, ଏମିତି କରିକି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ତପସ୍ୟା କହନ୍ତୁ। ସିଏ ବି ତପସ୍ୟା, ଆମେ ଯାହା ବୁଝିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଗୀତାରେ ଆମ ପାଇଁ ସହଜ ସରଳ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଏଇଠି ରହି, ଘରେ ରହି କେମିତି ତପସ୍ୟା କରିପାରିବା। ଶରୀରର ତପ, ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀର ତପ, ମନର ତପ ଆଦି କୁହାଗଲା। ମାନେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ସରଳ ସରଳ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଆମେ କେମିତି ସାଧନା କରିପାରିବା। ଏହି ଜାଗାରେ ରହି, ଏହି ପରିବାରରେ ରହି, ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହି, ଏଇଠି ସବୁ କାମ କରୁ କରୁ କେମିତି ଆମେ ସାଧନା କରିପାରିବା। ଇଏ ହେଉଛି ବଢ଼ିଆ କଥା। ଆମର ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ଏମିତି ମିଳେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତାର ଗୋଟାଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କହିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ଇଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶୈଳୀ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଏଇଠି ରହି, ଏଇ ସମାଜରେ ରହି, ଏଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରୁ କରୁ କେମିତି ଆମେ ପରମାତ୍ମାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଭଗବାନ ସେଇ ହିସାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଉତ୍ତର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକର ପ୍ରଥମ ଉତ୍ତର ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ସେଥିରେ ସହଜ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସହଜ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ। ସେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା କରି କହିଥିଲେ ନା, ସୌପାଧିକ ବ୍ରହ୍ମ ଆଉ ନିରୁପାଧିକ ବ୍ରହ୍ମ ବାବଦରେ କହିଥିଲେ, ତା ଦେହର ସହଜ ସରଳ ଉପାୟ କ'ଣ? ସହଜ ସରଳ ଉପାୟ ହେଲା ଯେ ତମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୌପାଧିକ ବ୍ରହ୍ମର ଉପାସନା କର। ଇଏ ଆମେ କାଲି ବିଚାର କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ସେଠି କେତେଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସୌପାଧିକ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆମେ କେମିତି ଉପାସନା କରିବା, ଆଉ ସେଇ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ମତରେ ୟା ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ, ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ମତରେ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କ'ଣ କ'ଣ କଲେ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ? ପ୍ରଥମ କଥା ତ ଭଗବାନ ସେଠି କହିଦେଇଥିଲେ, ତୋର ଯେଉଁ ଆବେଶ କରୁଛୁ, ଆବେଶ ଅର୍ଥ ଆମେ ବୁଝିଥିଲେ ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛାଦିତ, ଯେମିତି କ୍ରୋଧାବେଶ, କ୍ରୋଧରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇଯାଏ, ତାକୁ ଦୁନିଆ କିଛି ଦେଖାଯିବନି, କିଛି ଦେଖାଯିବନି। ଯେତେବେଳେ କାମାବେଶ, କାମନାରେ କାମରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସକ୍ତ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଦୁନିଆରେ ସେ ଜାଣିଛି ଏଟା ଭୁଲ କି ଏଟା ଠିକ୍ କି କ'ଣ ନୁହଁ, ସବୁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆବେଶ ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇଯାଏ, ଗୋଟେ ସମ୍ମୋହିତ ହେଇଯାଏ ଆବେଶ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆବେଶ ତ ହବୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ରୋଧାବେଶ କାମାବେଶ ନୁହଁ, ମୟା ଆବେଶ। ଏ ବଢ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଇଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତୁ ମୋରି ଆବେଶ ହେଇଯା, ମୋରି ଠାରେ ମୟା ଆବେଶ। କ'ଣ ଆବେଶ କେମିତି କ'ଣ ବୋଲେ, ମନକୁ ମୋ ଠାରେ ଆବେଶ କରିଦେ, ନିବେଶ କରିଦେ, ମୋ ପାଖରେ ଲଗେଇ ଦେ, ମୋ ପାଖରେ ତାକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଦେ। ମୋତେ ମୋରି ଦୁନିଆର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ଢାଙ୍କି ଦେଇଦେବ। ସେ ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖାଯିବି, ଆଖି ବନ୍ଦ କଲା ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖାଦେବି। ସବୁ କାମ କରୁଥିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖାଦେବି। ଏମିତି ହୁଏ। ଆପଣ କହିବେ ସବୁ କାମ କରୁଥିବା ଭିତରେ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା? ହେଇପାରିବ, ହେଲେ କେମିତି ହେବ? ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମା' ମାନେ ତ ବିଶେଷ କରି ଏଠି ଆମର ଅଧିକା ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ବି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ନୂଆ ମାନେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ତାକୁ ବହୁତ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଗରୁ ଗାଁରେ ବି ବହୁତ କାମ, ଛୋଟ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ, ତାକୁ ପାଲଣାରେ ଛୁଏଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, କି ପାଲଣା ତ ନଥିଲା, ଏମିତି ଆଙ୍ଗନରେ ଶୁଏଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତମାମ କାମ ପଡ଼ିଥାଏ, କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ କାମ କରୁଥାଏ, ସେ ମାଆର ମନ କେଉଁଠି ଥାଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାର ମନ ଆବେଶ ଥାଏ ସେ ନବଜାତ ଶିଶୁ ପାଖରେ। ମୋ ପୁଅ କ'ଣ କରୁ, ତ ଭୋକ ତ ଲାଗିନି, କାନ୍ଦୁ ତ ନାହିଁ, ଉଠି ତ ଯାଇ ନାହିଁ, ବାଥରୁମ୍ ତ କରିଦେଇ ନାହିଁ, ଏମିତି ସବୁ କାମ କରୁଛି। ତାର ମନ କେଉଁଠି ଲାଗିକି ରହିଛି? ତା ମନ ତାର ସେ ଶିଶୁ ପାଖରେ ଲାଗିକି ରହିଛି। ସେହିପରି ଆମର ମନ ସବୁ କାମ କର, ବାସ୍ ଏଇ ସୂତ୍ର ଟିକେ ଧାରଣ କର। ଏଭଳି ବହୁତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି। ଖାଲି ଇଏ ପୁତ୍ର ମା କଥା ନୁହଁ, ପ୍ରେମୀ ପ୍ରେମିକା କଥା ବି ଅଛି।
जहाँ को आमे भल पाती सबु बेले पाई तारी चिंतन होता है या कौन सी जिनिस प्रति आपणकर प्रेम भाव हो लगाव हो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो चाहे माँ पुओ हो या मित्र मित्र हो जेकोसी जगार आप एप्लाय करें जो आमर भल पाइबा हम जो आमर श्रद्धा प्रेम हम सेपरी भगवान कहते जी तोर श्रद्धा प्रेम भक्ति तो मो पाखरे श्रद्धया परम श्रद्धारे तू सेठी निवेश करदे मन को आ जदि यही भाव में परम स्थान कौन कौन कहीदे कहले मन को मो पाखरे आवेश कर मोरी पाखरे लगे दे आच्छादित करदे दिने करदेवा 2 दिन करदेवा बास होगला कहले ना ना नित्य जुक्ता है नित्य निरंतर मो पाखरे तू आवेश कर आओ एमती नुह जबरदस्ती कह जाए नु श्रद्धया परयो परयो श्रद्धा परम श्रेष्ठ श्रद्धारे युक्त है जदि आमे मन को भगवान को पाखरे लगौछंती नित्य निरंतर लगौछंती यही प्रकार भक्त से भगवान कहते युक्त तमा मता मैं युक्त तमा मता मो मतरे से होची श्रेष्ठ से होची युक्त तमा जीए से जो माने आपण 11 अध्याय जो 5टी कथा कह जाइथिला सेही परि भाव रे से विश्व रूप से जो सोपाधिक ब्रह्म प्रति जदि यहीपरि भाव में से साधना करुछि भगवान मतरे श्रेष्ठ। अच्छा भगवान एक कथा कहीं कहले श्रेष्ठ बोली तो कौन निर्गुण निराकार कौन खराब कहते ना से कथाटी को कहले निर्गुण निराकार खराब नुह ये भगवान आम उपर कृपा करने जो मंद आ मध्यम जो साधक अछंती तांको ऊपर अनुग्रह करने से एक कथा को आरंभ रे रखिछन आमे टिके पढ़िबा यदि निर्गुण निराकार आमे उपासना करूछन बहुत सुंदर सुंदर सब शब्द देछन निर्गुण निराकार उपासना आ सी जो निर्गुण निराकार उच्च कोटिर साधक से निर्गुण निराकार उपासना करि परिबो सेति पई एमिति नुह जे प्रथम रे एते कठिन कह दिया जीवो फिर आपण विचलित हो जीवो एत भगवान पूरा स्टेप बाय स्टेप हमको आगो को लेके चलिए आमे 3 नंबर श्लोक टिके देखिबा ओम श्री परमात्मने नमः अथ 12 अध्यायः भक्ति योग श्री भगवानुवाच ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। एठी भगवान एठी जो 2टी श्लोक रे मुख्य रूप रे जो 3 नंबर श्लोक आपण देखुचंदी चित्रे 8टी कथा से अव्यक्त से निराकार जो निरुपाधिक ब्रह्म कथा एठी कहा जाइछ। एठी सनातन धर्म रे एवं शास्त्र रे भक्त को मुख्य रूप रे 2 प्रमुख धारा अछि गोटे होची सगुण भक्ति आ गोटे होची निर्गुण भक्ति एमिति विभाग करा जाइछ। आम सनातन धर्म रे ये बहुत सुंदर चिंतन करा जाइछ एको आमे चिंतन माध्यम रे बुझी पारिबा। ये जो संपूर्ण जो धारा ये जो 2टी धारा कहा जाइछि ये ईश्वर को प्राप्त करिवा या तांक पर्यंत पहुँचवा पाई ये गोटे शैली गोटे साधन गोटे उपाय एमती यही उपाय माध्यम रे आमे से भगवान के पाखरे पहुँची पारिबा। विशेष करी आमर जो उपासना करुचंती आमे सब सोपाधिक उपासना करुचंती विशेष करी अधिकतर लोक सोपाधिकर उपासना करिथांती
देखो पूरा प्रैक्टिकली को अनुभव करूँ समाज रे कौन अच्छी सौपाधिक ब्रह्म रे ही उपासना आ ये को आम शास्त्र रे मुख्य रूप रे 9 प्रकार भक्ति आमर रामचरित मानस रे नवधा भक्ति आमर भागवत रे 9 प्रकार भक्ति ई सब भक्ति माध्यम रे आमे सी सौपाधिक ब्रह्मर उपासना करिथां आपण सब जानी प्रथम तो से जो नवधा भक्ति जो भागवत हिसाब रे यदि आपण विचार करिवे जे प्रथम भक्ति हैला आमर श्रवण ईश्वरंकर महिमा या श्रीमद् भगवत गीता आदि शास्त्र को ध्यान पूर्वक आमे श्रवण करिबा ये होची प्रथम भक्ति ता माने आमे जो माने प्राय सब आमे प्रथम भक्ति रे तो प्रवेश करी गले भक्ति जोग तो चली इथरे आमे जो 9 प्रकार भक्ति अच्छी समस्ते आमे प्रथम भक्ति रे आमे सब प्रवेश कर जाय समस्त सेति पई तो बसी के आपण सुनुचंती ना श्रीमद् भगवत गीता श्रवण प्रति आपणकर रुचि अच्छी विश्वास अच्छी निष्ठा अच्छी जेते बेले आमर रुचि हव विश्वास हव निष्ठा हव तबे जानि नियो जे आपण प्रथम भक्ति रे प्रवेश करि गलेनी श्रीमद् भगवत गीता भल लागुछि टिके आम मिश्र सारे कहते ना श्रीमद् भगवत गीता को भल पाउथवा यदि श्रीमद् भगवत गीता को आपण भल न पाई था आपण जोड़ी था कहीं निश्चित रूप से आपण भल पाउछंती तेणु भल पाउछंती आउ आपण श्रवण करूछंती ता माने होची आपण प्रथम भक्ति रे आपण प्रवेश करिवे सेकेंड कथा हला जहाँ आपण श्रवण करूछंती ताकू आपण टिके व्यास मंच माध्यम रे कहवा को चेष्टा कर किछि लोक आमर कहवा आरंभ कलेनी या श्रीमद् भगवत गीता आपणकर पारायण हैला बहुत लोक पाठ करथिले ता माने आमे द्वितीय भक्ति रे पहुँची गलेनी श्रीमद् भगवत गीतार से जो महिमा को आमे गुणगान करूचंती पाठ करूचंती या भगवानकर नाम संकीर्तन करूचंती भजन करूचंती जप करूचंती ये आपण जदि एथिरे आपणकर रुचि हैला ता आपण जानतु जे आपण द्वितीय भक्ति रे आपण प्रवेश करि गलेनी तेणु प्रथम भक्ति आपणकर श्रवण द्वितीय भक्ति आपणक जहाँ शुणिले ताकू टिके व्यक्त करिबा आओ माने जहाँ भी हो 5 मिनट हो 10 मिनट हो आपण व्यक्त करंतु कहंतु आपणक पाखरे जो माने अछंती आपणकर आलतू फालतू चर्चा काई करिबा जिते बड़े आपण फोन अच्छी माध्यम अच्छे आज आम कौन डिस्कसन कले आज स्वामीजी कौन कौन सब कहते हाँ यही कथा कहते तेणु सी आपणकर कीर्तन हो स्मरण जदि आपण श्रीमान आम समस्ते भगवान को स्मरण करुचंती जहाँ पाठ पढ़िले या चिंतन मनन करुचंती एमिति जदि करुचंती ये तृतीय प्रकार भक्ति रे आमे प्रवेश करिगले टिके भगवान को स्मरण कर आपण एपरि भाव रे सब कहा जायछि जे ये जगत को गोटे ईश्वर भाव रखी तांको सेवा कर जेते हमको आमे गोटे आज ये स्थिति रे पहुँची बहुत लोकंकर योगदान अच्छी बहुत लोकंकर जड़े व्यक्ति डॉक्टर हैला वकील हैला टीचर हैला या कौन सी साधु महात्मा हैला जहाँ भी किसी बन समस्त योगदान अच्छी तेणु समस्त सेवा भाव रखा भक्तिर तो मूल सिद्धांत ही सेवा जदि आमे सेवा करुछंती से ईश्वर भाव रखुछंती ताहले आमे एमिति चतुर्थ प्रकार भक्ति भगवान को टिके अर्चना कर दियो विधि विधान पूर्वक पूजा पाठ यज्ञ हवन कर दियो एक गाँव सब करुथि संक्रांति अमावास्या पूर्णिमा एकादशी आदि रे किछि किछि पर्वपर्वाणी रे किछि आमे ईश्वरंकर तांकर अर्चना पूजन आदि करवा कथा आउ भगवान को सकाळू या संध्या पर्यंत जिते बेले भी आपण भगवान को थैंक्स करंतु प्रणाम करंतु हे ईश्वर हे प्रभु जे आपण कृपारू आज मु ठीक ठाक भाव रे उठी पड़िली माने आपण जानिछंती लोक सोउछंती तो राति रे सोईकी रही जाउछंती आ सकाळ को उठी पारु नांती एमिति बहुत घटना घटुची बहुत घटना आपण ठीक ठाक सोईछंती सकाळ उठिले ठीक ठाक उठिछंती भगवान को प्रणाम करिके तो उठ आ भगवान कर
आमे ईश्वर भाव मानी तांका सेवक मानी आमे तांकर सेवा करिबा एमिति सब या किछि जदि न मानि पारुछ भगवान को निजर मित्र मान भगवान को निजर भाई मान बाप मान भगवान को किछि भी मानि पारिबा भगवान को पाखरे अंतिम रे निज को निजे समर्पण करि दियो एहिपरि भाव रे हमर 9 प्रकार भक्ति कहा जाइछि ये सब सोपाधिक भक्ति कहा जाइछि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम 9 प्रकार भक्ति ये सब आपणकर सोपाधिक भक्ति आपण ये भक्ति करी आमे से पहुँची पारिबा किंतु एठारे जो कहा जाइछि ये श्लोक रे निरुपाधिक भक्ति कथा कहा जाइछि आपणक मन रे विचार आसीबो ताले श्रेष्ठ को भक्ति सोपाधिक भक्ति या निरुपाधिक भक्ति यही भाव रे सगुण उपासना हमें जो करि थांती जो 9 प्रकार भाव रे सगुण भक्ति करि थांती यही जो भक्ति ईश्वरंकर जो साकार जो आकार स्वरूप से जो विराट स्वरूप वर्णन 11 अध्याय रे जो करा जाइछि से परि भाव रे आमे भगवानंकर भक्ति करि परिबा हे दीनानाथ हे भक्त वत्सल हे कृपालो हे करुणा निधान हे प्रेम स्वरूप एमिति से भगवानंकर से जो साकार रूप को आमे स्मरण करि परिबा से निराकार ईश्वर से अवतार नेके से मानवीय या दिव्य रूप रे हमर प्रकट हेई थांती आमे पूजा करि थांती से पूजा करिबा पई आमे गोटे उपाधि गोटे प्रतीक नहीं थांती से ईश्वरंकर उपस्थिति को आमे व्यक्त करिबा पई आमे गोटे मूर्ति माध्यम रे गोटे चित्र माध्यम रे या कौन से प्रतीक माध्यम रे आमे अनुभव करि थांती हमर ये अनुभव करिवार गोटे साधनता है आमे भगवान के संगरे माने व्यक्तिगत गोटे संबंध बनाओ जे प्रभु मोर गोटे संबंध तो आपण परिवार संगरे संबंध बनै ये मोर स्त्री ये मोर पुओ ये मोर नाती नातुणी केते संबंध बनाउछन केतबेले भगवान के संगरे आमे संबंध बनै कि नहीं भगवान मोर कौन किछि ना किछि बहुत लोक अछंती भगवान को पुओ रूप रे पूजा करंती पुत्र रूप रे भगवान मोर पुओ बहुत मु झियो मान को देखिछि से माने कहंती ये कृष्ण मोर होची भाई ताकू राखी बांधंती मोर भाई नहीं तो कौन है कृष्ण तो मोर भाई ना एमती राखी गोटे संबंध कृष्ण तो मोर पुत्र एमती संबंध गोटे संबंध तो बनैवा को पड़िबो ना यदि सगुण उपासना करूछन लीला तांकर अवतार जो सगुण भक्ति रे भगवान लीला कथाएं तांकर गुण गायन तांकर विशेष सब महत्व ये सब प्रतिपादन करा जायछि एमती करिबा दरकार आम भारतीय परंपरार मुख्य रूप रे एपरी भक्ति करुथवा लोक बहुत अधिक आपण पाइबे आपणकर जो रामानंद संप्रदाय रे भगवान राम को जमती वल्लभाचार्य संप्रदाय रे भगवान कृष्ण को एमती भगवान शिव को भगवान दुर्गा सूर्य आदि को एमती मानिला वाला सगुण भक्ति कला वाला बहुत लोक अछन सेकेंड कथा एठी जो विचार हैला जो निर्गुण भक्ति अर्थ कौन से जो निराकार स्वरूप से अमूर्त तार कौन सी मूर्तिमान नहीं से गुण रहित कौन सी तार गुण नहीं से आधार रहित से ईश्वरंकर माने निराधार ईश्वरंकर आमे आराधना करंती से तो होची आपणकर निर्गुण निराकार एमिति यही विचारधारार लोक माने सेमानक भितर आमर एबे समस्या कौन है यही प्रकार जो विचारधारा व्यक्ति से माने एमिति मानती जो मूर्ति पूजा जो माने करचंती तांको बहुत से माने कहती भगवान तो कौन से रूप नहीं कौन से आकार नहीं कौन से जाति नहीं से तो सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान आओ तांको एमिति करबा कथा नुह ये एमिति बहुत विरोध कर दियंती ना आमर निर्गुण भक्ति तार प्रमुख लक्षण अच्छी ताको आमे सही परि भाव से ईश्वरंकर से स्वरूपंकर आमे पूजा करिबा आमर ईश्वरंकर स्वरूप कौन से परमात्मा से अभिगत से देखा जानते नहीं से अजन्मा अनादि
किंतु आमे जो विरोध करी बसंती ना यहीटा हूँ बहुत बड़ गोटे भूल करते। आम बहुत लोग कहते अरे ये मूर्ति पूजा ये कर्मकांड ये सब पाखंड ये सब विरोध कर दियंती। भगवान कहते ठीक अच्छे तो पाई ये तोर साधना से आमर महापुरुष माने कौन करि ना से माने आम मान को किछि ना किछि गोटे आधार दे दी था। बहुत लोक अच्छी से माने देवी देवता को ईश्वर को पूजा करती। बहुत लोक अच्छी गुरु को पूजा करती। बहुत लोक अच्छी आपणकर से जो ओमकार ओम को पूजा करती। किए बहुत अच्छी कलश को पूजा करती। एमती कौन से ना कौन से गोटे महापुरुष माने आमको आधार देते। से आधार माध्यम रे आमे आगो को बढ़िबा ता माने नुहे जे आमे विरोध करिबा। भगवान स्पष्ट रूप से कहि दैछन्ति कहछन्ति ना न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानम कर्म संगिना जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचर। अरे न बुद्धि भेदम जनयेद तमे एते सब पढ़िला परे जानिला परे फिर भी तमे सब भेद बुद्धि उत्पन्न करुछ। ये श्रेष्ठ ये निकृष्ट कई श्रेष्ठ नुह कई निकृष्ट नुह सब बढ़िया सब भल तुम कहीं भेद जी जो स्तर रे अच्छी से स्तर रे से महापुरुष माने किछि ना किछि गोटे आमको आलंबन दियंती। आमे विरोध करवा नहीं। किछि संस्था अच्छी से विरोध करती से गीता पढ़ी ना जानी ना नहले भगवान को कौन पाई कहवा को पड़ी था। ये प्रथम भगवान उत्तर दौरान द्वितीय नंबर श्लोक कहले से हूँ मोर युक्त तमाह युक्त मता मो मतरे से हूँ सर्वश्रेष्ठ। किए सर्वश्रेष्ठ जी यहीपरि भाव उपासना करुचे जी यहीपरि भाव चिंतन करुचे। भगवान को तो डायरेक्ट निर्गुण निराकार कथा कह दी था। भगवान को दुई दुईटी कथा नहीं कि केबे भी आमर बुद्धि भेद उत्पन्न करवा ना मोर समस्त को अनुरोध रहिबो न बुद्धि भेदम जनयेद। जी जो स्तर रे अच्छी जी जो स्तर रे साधना करुचे ठीक अच्छे करुचे धीरे धीरे से आगे बढ़िबो। आमे भी करवा तांको लगेइबा जदि आमे तुरंत तो मना करदवा आमे घोर से सब फसिके रही था। आमे अन्य को उपदेश दे था। आमे घोर पूजा करुथांती पाठ करुथांती परंपरा को मानुथांती अन्य को उपदेश दे दियंती जे परंपरा को मान नहीं घोर विरोध करती। ये भल कथा नुह। आमे सेतिपई कहार बुद्धि भेद उत्पन्न करवा नहीं। सेतिपई बहुत संस्था लागिक रही आम सनातन धर्म को यहीपरि भाव में नष्ट करने जहाँ भी हो आप सब बुझुंट सब जानुंट से आम कौन सी कथार विरोध नहीं। तमें जमीती करुच से ठीक अच्छे हाँ धीरे धीरे आगे बढ़ेगा विरोध नुह बास एति मोर निवेदन रमें विरोध नुह धीरे धीरे आगे बढ़ेगा ठीक अच्छे जहाँ करुच बहुत भल कथा आगे एमती भी करके देख। तेणु निर्गुण भक्ति को मुख्यतः दुई भाग रे बांटी था। ये जो चलती गोटे ज्ञान मार्ग आ गोटे आमर प्रेम मार्ग भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग रे भी आम से निर्गुण निराकार उपासना आम पर्यंत पहुँची पार। ज्ञान मार्ग रे तो से अनुभव किंतु आमर भक्ति मार्ग रे भी अंतिम रे से जो निर्गुण भक्ति आमर देखो ज्ञान एवं प्रेम रो बहुत महत्व अच्छी। खाली ज्ञान को धरिकी बसीगले हेनी भगवान से बारंबार मझे कह आमर जो मुख्य विषय रहिबो अनन्य भक्ति द्वारा मते प्राप्त करि परिबो। एक कथा भगवान काहे कहले भगवान तो कहि देथिले ज्ञानी मोर सबुठारु बड़ मोर पुओ सबुठारु भल सब कहि देथिले। ज्ञानी भलिया मोर आ दुनिया रे कहीं नांती ज्ञानी तो मोर आत्मा ज्ञानी सब किछि फिर एक कथा काहे कि भगवान कहया पड़ला अनन्य भक्ति द्वारा मते प्राप्त करि परिबो। ता माने हैला एठी आमर दुईटी मार्ग अछि। गोटे हूँ आमर ज्ञान द्वारा ताकू आमे ध्येय बना माने ताकू ज्ञान द्वारा आमे ताकू ज्ञेय बनै परिबा आ भक्ति द्वारा ताकू आमे ध्येय बनै परिबा। कौन सी विरोध नहीं बस आज ठारू
जिते मोर आज क्लास शुणुंट गोटे दिमाग रे बसातु कौन सी जगार आम विरोध करवा ना आहुरी आगे बढ़ावाई चेष्टा करवा। आमर एथिरे जो निर्गुण निराकार एथिरे जो तृतीय नंबर श्लोक रे कहते जी ज्ञान योग समाधि ठीक ठीक जो विवेक युक्त माध्यम रे आमर से निराकार ईश्वर को समाधि पर्यंत आम पहुँची पार प्राप्त करि पारिबा। तापर बहुत जोर दिया जाए ज्ञान मार्ग सब खूब भगवान ये कहते आमर बहुत संत अच्छा ज्ञान मार्ग रे कबीर जी हेले गुरु नानक हेले रविदास हेले दादू दयाल हेले एमती सब संत परंपरा सब अच्छी कोई महाराष्ट्र आदि एमती से आमर पूरा निर्गुण निराकार को ही से बहुत जोर देते भल कथा। भक्ति मार्ग रे तो बहुत संत अच्छा सी अंतिम रे सी एक ही जानते चाहे अपन ज्ञान मार्ग रे जातु आ भक्ति मार्ग रे जातु भक्ति रे सेठी दुई नहीं भक्ति रे भी सेठी एक ही जानते से जो परम भक्ति ज्ञान फिर ज्ञान और भक्ति रे अंतिम रे कौन सी प्रकार भेद न था। बस ये प्रेम मार्ग रे भी सेठी द्वैत नष्ट हो जीव बस एक ही एक मोर भगवान रही द्वैत ही नहीं आपण लास्ट कथा कहूँ प्रथम तो द्वैत करके से माने उपासना करेंगे लास्ट स्थिति कौन लास्ट स्थिति से अद्वैत स्थिति रे पहुँचती चाहे तुम ज्ञान मार्ग रे जाओ चाहे तुम भक्ति मार्ग रे जाओ जेकोसी भक्तिर जो आचार्य माने अच्छा पचारे अंतिम रे किए रहिबो एक कि अनेक अंतिम रे एक सी कहीदेवी से राम कृष्ण भगवान विश्व ठीक अच्छे ना अनेक हो पारे अलग कथा अंतिम रे एक ही बंचे से को आमे तमें राम कौच कृष्ण कौच जगन्नाथ कौच मुझे को आत्मा कौच ब्रह्म कौच परमात्मा कौच मु भी तो से कौच एक ही सत्ता अच्छे बस आमर से भक्ति हो ज्ञान हो से एक से परम सत्ता से तारी पाखरे आमर पहुँचवा ये हूँ आमर मुख्य उद्देश्य से परम सत्ता पाखरे पहुँचवा बस। तेणु एठी आम मानकर समस्या कौटी अच्छी ना आमे सगुण वाला बनी पारुचंती ना आमे निर्गुण वाला बनी पारुचंती। ये ठीक अच्छे आमे धीरे धीरे सगुण उपासना करी 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 आमे निर्गुण पर्यंत पहुँचवा विरोध करवानी बस ये मोर निवेदन आमे स्वयं करवा अन्य को लगेगा आमे स्वयं करुचंती अन्यर विरोध कर दौरान विरोध करवानी बस। अच्छा संसार रे जेते पर्यंत आमे अच्छी आमर सब व्यवहार चलिबो किंतु सत्य को सदा आमे स्मरण करिबा अनेक व्यवहार करिबा किंतु से परम सत्ता से परम सत्य से परमात्मा से को आमे सदा सर्वदा स्मरण करिबा। जेमिति सूर्य उदय होछि अस्त होछि आमे सब व्यवहार करचंती कि नहीं पिला मान कहउचंदी ए सूर्य उदय हो गलानी उठी पड़ सूर्य अस्त समय रे सोइबा कथा नुह एमती सब कह दियंती। अच्छा जदि आपण चिंता करेंगे कौन सूर्य उदय अच्छी कौन सूर्य अस्त अच्छी ना सूर्य उदय अच्छी ना अस्त अच्छी पृथ्वी बुलुवा कारण दिन राति होचे आमे सब जानी किंतु आमे व्यवहारिक दृष्टि आमे मु भी केते थर कह दिए ब्रह्म मुहूर्त रे उठ ता माने होची आमर ब्रह्म मुहूर्त कौन एतिकटार एतिक समय सूर्य उदय समय एमती कह दिए ये व्यवहारिकतार चलो किंतु अनुभव कर जमी मेघ आसीगला अंधकार हो गला फिर मेघ चलीगला प्रकाश हो गला कौन सूर्य से समय बुड़ी जाता मेघ जो आसला सूर्य सेमती प्रकाशित करते ठीक है से समय मेघ आच्छादित हो जाता आमको लगे जे अंधार हो गला जमी ग्रहण लगे गोटे समय ग्रहण लगी से समय पूरा अंधकार हो गला अंधार हो जाता सब पशु पक्षी सब घर को पलि आसुले एत अंधकार हो गला कौन सूर्य अस्त हो गले कहले ना ना सूर्य अस्त ना कि उदय ना कि व्यवहारिक दृष्टि आम कहते सेपरी आम जानी सबकि से निर्गुण निराकार से परम सत्ता एक सत्ता किंतु व्यवहारिक दृष्टि आम कले भल कथा आम होली मनाऊँ दीपावली मनाऊँ रज उत्सव मनाऊँ ठीक अच्छे व्यवहारिक मनाओ खूब आनंद नियो
खूब पोड़ पिठा खाओ, आंब पणस खाओ। हाँ अच्छा, सेहीपरि से निर्गुण निराकार से परमात्मा से सदा सर्वदा सबु जगार सबु समय सबु वस्तु से विराजमान अच्छा। सगुण उपासना माध्यम आम निर्गुण पर्यंत पहुँची पारिबा। सी माने गोटे गोटे साधन थाए, गोटे परंपरा थाए, गोटे स्टेप बाय स्टेप आम आगे बढ़ापी महापुरुष माने आमको सब कौन ना कौन गोटे वस्तु आमको धरे दी था, तारी माध्यम आम चिंतन मनन आदि करते। ताहले एथिरे आमे जो विचार कले ज्ञानी पुरुष अज्ञानी पुरुषर ता प्रति कौन भेद बुद्धि न उठो न ये करू। बस ये हूँ मुख्य कथा। इठी जो विषय जो चली ते विषय उपर आसतु। एक सांगरे एठी भगवान जो तृतीय और चतुर्थ नंबर जो श्लोक आम पाठ कले एथिरे देखिबा 3 नंबर श्लोक रे जो निर्गुण निराकार को एठी 8टी शब्द रे एठी प्रतिपादन करिसे, 8टी तांका लक्षण कहिसेंती। आमे पूर्व श्लोक रे देखले जो सगुण उपासक माननकु सेठी भगवान सर्वश्रेष्ठ योगी कहिदेले। कहीं ना जो माने शास्त्र युक्त कर्म करुछंती तांक मनरे अश्रद्धा उत्पन्न न हो सेथिपाई भगवान कहि। भगवान 7वां अध्याय रे भगवान कहते सबु प्रकार भक्त ही मोर चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेणु से ज्ञानी भी मोर भक्त, आर्त अर्थार्थ जिज्ञासु से भी मोर भक्त। तेणु भगवान भक्त तो सबु ना। तेणु तुम्हें अर्थार्थी पाई हो या आर्थ पाई भगवान से सगुण हो या निर्गुण हो सब भगवान भक्त। भगवान सगुण को श्रेष्ठ कहले तुरंत निर्गुण मान कथा कहवा आरंभ करदे। कहीं कहले ना एमिति न हो जी निर्गुण माने फिर नाराज हो जाए, से भगवान तुरंत माने 2 नंबर सगुण को श्रेष्ठ कहदे, फिर भगवान निर्गुण को कहते। ये देखु माने श्लोक देखु तृतीय नंबर, ये तू अक्षरम, ये तू अर्थ परंतु किंतु, किंतु ये माने जो भक्त, किंतु जो भक्त या जो पुरुष से जो अक्षर ये 8टी जिनस देखिए गणिबे आ 8टीर परिभाषा भी टिके मन रखापी चेष्टा करेंगे। 8टी कथा कौन, प्रथम कथा कहीदेले अक्षर। अक्षर माने कौन आपण सब जानी जार केबे क्षरण हुए नहीं, विनाश हुए नहीं, केबे तार किछि कम हुए नहीं, से सच्चिदानंद ब्रह्म को अक्षर शब्द रे कहीदेले। प्रथम अक्षर, क्षरण न क्षरति स अक्षर, तार क्षरण नहीं। अच्छा सेकेंड कथा कौन कहले अनिर्देश्य, अनिर्देश्यम आउले अव्यक्तम। देखो 2 नंबर 3 अनिर्देश्यम आ अव्यक्तम, जहाँ को आमे व्यक्त करि परिबा नहीं या जे के भी व्यक्त हुए नहीं। व्यक्त अर्थ जो शब्द आदि विषय न बनिबा कारणरू तांको अव्यक्त कहते। जेमिति कौन से गोटे मो पाखरे ये अच्छी कौन अच्छी ये मोबाइल अच्छी, तेणु मु कौन कली ताको इंद्रिय माध्यम रे मु एक विषय बनैली, मो आखि द्वारा मो हाथ द्वारा मु एक विषय बनईदेली। तेणु जिते विषय बनीज से से व्यक्त हो जाए। से परम ब्रह्म परमात्मा को सेपरी आम विषय इंद्रिय द्वारा विषय बनी पारे ना, से व्यक्त हुए ना, से अव्यक्त कहगला। आ अव्यक्त हवा कारणरू सी अनिर्देश्य हो गया है गला। अनिर्देश्य माने तांको निर्देश करि पारे माने तांको देखै परिबा नाही, इंगित करि परिबा नाही। यही वस्तुटा एमिति देख ये होची पुस्तक, एमिति आमे तांको निर्देश करदेले, तांको देखै देले, इंगित करदेले। सेही परि आमे इंगित करि कहि पारे एइटा होची ब्रह्म। हाँ ये ब्रह्म होची एमितिका, एमिति एमिति कहि परिबा। सेथि पई से हेले अनिर्देश्य। बहुत बढ़िया। जिए व्यक्त हुए नहीं तांको अव्यक्त कहि दिया गला। आहो सी अव्यक्त हवा कारणरू सी अनिर्देश्य हो गले।
माने जो व्यक्त हुए ना माने इंद्रिय मन बुद्धि रे से विषय बनी पारे ना इंद्रिय द्वारा मन द्वारा या ताको कौन से आम जानी पारिबानी विषय बनी पारे ना कौन से रूप या आकार ही नहीं व्यक्त सी नहीं सी अव्यक्त से मो ठारू अलग हेले सीना मु निर्देश करी देखो कौन से गोटे वस्तु ये मोर पुस्तक अच्छी मुझे निर्देश कर देख ये एक पुस्तक ता माने मो ठारू ये पुस्तकटी अलग से मुझे निर्देश करदेली किंतु आत्मा तो मो ठारू अलग नुह ना तो मुझे निर्देश केमी करी मुझे कहीदेवी एमती से सी अनिर्देश्य प्राय बुझीपारे अनिर्देश्य अर्थ कौन जी मो ठारू अलग हम इदम रूप जी हम इदम शरीरम ये शरीर ताको आपण शरीर को निर्देश कर ये मोर हाथ ये मोर आखि आमे मु निर्देश करि पारुछि तो मु कहि पारुछि किंतु से आत्म तत्व स्वयं ही मु ताको मोते कौन निर्देश करी मु आत्मा ठारू अलग तो नुह ना ताको सेतिपाई से विषय बने हुए नहीं सेतिपाई ताको व्यक्त करी हुए नहीं सेतिपाई ताको निर्देश करी हुए नहीं से अव्यक्त आत्मा केमिति सर्व माने से होचंती हाँ प्रथम शब्द है अक्षर से जो जाको निर्देश करी हुए नहीं अव्यक्त से अनिर्देश्य से अक्षर तीनोटी शब्द हो गला बुझीगला चतुर्थ देखंतु से सर्वत्रगम ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते उपासना करती उपासना शब्द को लास्ट लगेगा तापर देखो सर्वत्रगम सर्वत्रगम अर्थ कौन व्योमवद व्यापी से सर्वत्र आकाश समान सर्वव्यापक से जो आत्मा से केमितिका से कौ जगार अच्छी कहला से हूँ व्योमवद व्यापी अच्छा आकाश कौ जगार अच्छी कौ जगार नाही से सबु जगार अच्छी परिपूर्ण अच्छी से आकाश से जेमिति गोटे माटीर वासन अच्छी या कौन सी सुनार अलंकार अच्छी माटी कौन सी कलसी घड़ा नहीं से कलसी घड़ा माटी घड़ा रे कौ जगार से माटी अच्छी कहला से घड़ा रे सर्वत्र माटी व्याप्त अच्छी अलंकार रे कौ जगार सुना अच्छी से अलंकार रे सबु जगार सुना अच्छी आमर आकाश कौ जगार व्याप्त अच्छी से आकाश सर्वत्र अच्छी सबु जगार से आकाश व्याप्त अच्छी तेणु यहीपरि भाव रे से हेले सर्वत्रगम अचिंत्यम तांकु चिंतन करी हुए नहीं से चिंतन रे आसे नहीं कहीं ना सी अनिर्देश्य हो गले सी अव्यक्त हो गले तो चिंतन रे केमिति आनी अचिंत्यम कूटस्थम से कूट से स्थित अछंती कौन सी प्रकार एमिति नुह से कूटस्थ पर अचलम शब्द प्रयोग कर पूरा तार ऊपर सृष्टि बनूची बिगड़ी जाऊची कौन सी प्रकार परिवर्तन नहीं अचलम कौन सी प्रकार से चलायमान नहीं कूटस्थम अचलम ध्रुवम से सदा सर्वदा रहिला वाला एमिति नुह काली थिला आज नहीं पहर दिन रही सेमती सदा सर्वदा प्रथमे थिला अच्छी रहिबो आमे काल दृष्टि आमे थिला अच्छी रहिबा कहउछंती सी तो काल रहित ना सी त्रिकालतीत त्रिकाल रहित से सी ध्रुव ये बहुत बढ़िया बढ़िया शब्द अच्छी तेणु एक आम फिर आग क्लास रे आहरी भी चिंतन करवा मो मन भरी नहीं एक आहरी चिंतन करवा ताने एठी आमे दुईटी माने गोटे श्लोक आम आज चिंतन कले जे सी जो परम ब्रह्म परमात्मा से सगुण भी से निर्गुण भी से सोपाधिक भी से निरुपाधिक भी से जो सोपाधिक निरुपाधिक कौन सी श्रेष्ठ या निकृष्ट एमिति भाव रखा नहीं सबकि केबे कहा प्रति आमर भेद बुद्धि उत्पन्न करवा ना जी जमीती अच्छी ता सांगर करी तांको आहुरी आगु को बढ़ावा
चेष्टा करिबा। बस ये हूँ श्रीमद् भगवद गीतार निर्देश दि जाए। हाँ ये आज वाणी को विराम दवा। ओम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषां गोब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। समस्त पुनः प्रणाम। एटी वाणी को विराम। हरि ओम।